افسوس کی بات یہ بھی تھی کہ وہ بالکل نوجوان تھے، AK-47 ان کے پاس تھی، 20 کے قریب وہ لوگ تھے، اور بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اردو میں بات کر رہے تھے. نوجوان لگتے تھے، تقریباً ان کی ایج میرے حساب سے 20 اور 22 کے درمیان ہوگی. اور AK-47 ہر کسی کے پاس. 12 بندے اندر تھے اور تقریباً 8-7 جو ہے نا بس کے باہر تھے، چھت پر تھے. جنگل میں لے گئے اس بس کو. ذرا سوچیے کہ کیا یہ اس وقت کیا سما ہوگا. میں خود ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں ریاض احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریاض احمد 786. دوستو کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو آج میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں جسے سن کر آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ایسا کون سا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا. انہی آنکھوں نے دیکھا کہ آپ شاید دیکھتے تو آپ کے جو ہے نا یہ ٹانگیں ایسے ہلنا شروع ہو جاتی. یہ تقریباً کافی عرصے پہلے کا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. یہ گرمیوں کے دن تھے. ہم لوگ جو ہے نا لاہور کی طرف آ رہے تھے بس میں. تو یہ ملتان سے آگے علاقہ ہے کچا کھو. آپ دوستوں نے سنا بھی ہوگا اس کے بارے میں، کچا کھو کے بارے میں. تقریباً یہ رات کے کوئی 1-1:30 بجے کا واقعہ ہے. تو بس میں موجود تھے، کافی تعداد میں سواریاں بھی تھی، اور جو آدھی بس تھی وہ تقریباً تبلیغی جماعت والے تھے. غالباً وہ بھی آ رہے تھے اور لاہور کی طرف جا رہے تھے. مجھے یاد نہیں، کافی عرصہ گزر چکا ہے اس واقعے کو. تو جو ہے نا پھر کیا ہوا کہ جب کچے کھو کے قریب پہنچے تو جو ڈرائیور تھا بس کا تو وہ کہنے لگا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ ہماری بس جو ہے نا خطرات سے گزرنے والی ہے. آپ جو ہے نا کوئی چیزیں اپنی سنبھال لیں. یہی 2 منٹ یا منٹ اس نے بات کی اس واقعے میں. تو وہ جو ہے نا بس ادھر ہی بس پھر اچانک اس کو بریک لگانا پڑی، اور بریک لگاتے ہی مسلح افراد تقریباً 20 کے قریب لوگ تھے، 20 کے قریب، اور ناکاب کیا ہوا تھا پورا. تو ان کے پاس جو تھی AK-47. تو بس میں پوری کھلبلی مچ گئی، شور شرابہ مچ گیا. آتے ہی ان لوگوں نے پہلے ڈرائیور کو مارا ڈنڈے سے. اس نے کہا جیسے ہم نے کرنا ہے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، خبردار آپ نے کوئی مزاحمت کی تو ہم ادھر ہی جو ہے نا آپ کو ڈال دیں گے کہ آپ ہل بھی نہیں سکیں گے. پھر کنڈکٹر کو مارا، اس کو باندھا، اس کے ہاتھ باندھے پیچھے، اور اس سے جو بھی پیسے تھے ان لوگوں نے لے لیے. تو پھر جو سواریاں تھیں ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو کہنے لگے بھائی دیکھو یہ جو سامان ہے نا آپ نے بالکل شرافت سے نکالنا ہے، ورنہ جو بھی کوئی چیز نہیں دے گا وہ اپنی زندگی کا خود ذمہ وار ہوگا، ہم نہیں ہوں گے. یہ ان کے الفاظ تھے.
औरतें भी थी काफ़ी तादाद में, बच्चे थे, लोग। ज़ाहिर है आपको पता है कि सफ़र का समा था, कोई जा रहे थे अपने घरों को, कोई नौकरी के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, कोई काम के सिलसिले में। तो जनाब उसने फिर ड्राइवर को कहा कि बस जो है ना लेफ़्ट वाली साइड पर एक रास्ता जाता था, उस तरफ ले चलो। तो मजबूरी थी, तो जो जमात थी तबलीग वाले, उन लोगों ने मिन्नत समझ की, देखे भाई अल्लाह का रहम करें उनको, बुज़ुर्ग आप मेहरबानी करें, आप चुप करके बैठे, हमने आपसे 1 रुपया भी नहीं लेना और ना हमने आपको लूटना है। लोग हैरान हो गए कि आप जो है ना बिल्कुल आराम से बैठे, आप दखल ना दें, लेकिन हमने आपको कहना भी कुछ नहीं है, आप बैठे भी आराम से। बेचारे थे वो चुप करके बैठ गए। उन्होंने कहा जी, उनका जो बड़ा था, जो कमांडोज था, वो लीड कर रहा था, उसने यही कि इन मौलियों को जो है ना आपने बिल्कुल आधी बस, 72 सीटर बस थी भाई, 72 उसकी जो है ना सीटें थी। तो उसको जो कमांडो था उसने कहा कि भाई देखो, ये जो है ना आपने इन मौलियों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। तो वो बेचारे पास बैठ गए, फिर जंगल की तरफ ले गए बस को दोस्तों। फिर उन लोगों ने पहले क्या किया कि बस लूटना शुरू कर दिया सबसे, किसी से 5 था, किसी से 10 था, किसी से 100 था या 200 था, जितना भी था। तो वो उन लोगों ने ले ली उनसे रकम, औरतों को भी नहीं छोड़ा। और अफसोसनाक वाक़या ये भी था कि उस बस में एक डेथ भी हो चुकी थी। तो अफसोसनाक बात यह भी थी कि उसमें एक बच्ची थी बेचारी, उसकी डेथ हो गई थी। उसकी माँ जो है ना रो रही थी, चीखो पुकार कर रही थी, ज़ाहिर है उसकी बच्ची थी। बस में ये भी एक परेशानी वाली सूरत हाल थी, वो बेचारी थी बीमार, उसको वो लोग लाहौर लेके आ रहे थे, उस बच्ची को। तो बीमार थी, बच्ची को लाहौर लेके आ रहे थे। पहले रोती रही बच्ची, तबलीग वालों ने उनके ऊपर दम किया, जो भी सूरत थी उनको, बच्ची को कोशिश की भी अल्लाह के कलाम से जो है ना बच्ची ठीक हो जाए, लेकिन वो बच्ची जो है ना रोते रोते दम तोड़ गई। उनकी इतनी तबीयत बेचारी की अपसेट थी, पता नहीं क्या मसला था वो सब माँ के साथ क्या बना भाई, माँ के तो बुरे हालात थे। फिर सबको लूटते लूटते उस औरत को भी नहीं छोड़ा जिसकी बच्ची फौत हो चुकी थी, उससे भी पैसे ले लिए और थोड़े बहुत उसको वापस भी किए, मुझे याद है। तो जो है ना लोगों ने मिन्नतें की, जो सवारियां थी दूसरे, उनको मारा पीटा गया। तो सर बहुत डेंजरस हालात था उस वक्त। मैं कहता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि क्या बनेगा। हमारी बारी भी आई, मेरे पास मेरे साथ जो थे मेरे भाई थे, वो बोला भाई पैसे निकालो, हमको भी बोलने पैसे निकालो, पैसे निकालो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। भाई मेरे ने कहा यार, उसने कहा हम तो मज़दूर हैं, मज़दूरी के लिए जा रहे हैं लाहौर, तो ये मेरे पास कोई तकरीबन 400-500 है, पैसे थे हमारे पास तकरीबन कोई 6-7 हज़ार रकम थी, उन्होंने जूती के नीचे छुपा ली। उस वक्त ड्राइवर ने बताया था ना भैया हालात चेंज होने वाले हैं, डाकू आने वाले हैं, आप जो है ना अपना पैसा शैसा आप सेव कर लें, क्योंकि उसने देखा था आपके सामने कि गाड़ी उनको छोड़ के गई थी और गाड़ी साथ साथ गई। फिर जो है ना पैसे लिए नहीं उन लोगों ने,
अल्लाह बेहतर जानता है, आप हमसे क्यों नहीं लिए? पैसे लिए नहीं, उन्होंने कहा हम आपकी तलाशी लेंगे, अगर आपसे पैसे निकल आए इस 4-5 से अलावा, फिर हम आपको उधर ही फायर खोल देंगे और उधर ही मारेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर जनाब लूट लाट के सब कुछ, फिर वो आप कहा जी नीचे उतरो, आप नीचे उतरो, नीचे उतरो, सारे नीचे उतरो। तो वो जो थे मौली थे, वो बेचारे गए, उनके मिन्नत समझे कि मेहरबानी करें, एक तो यहाँ पर बच्ची फौत हो गई है, दूसरा है आप इतना जुल्म ना करें, कोई अल्लाह का खौफ करें, तरस खाएं, ये गरीब लोग हैं, कोई अमीर नहीं है, आप जिनको लूट रहे हैं। बस फिर उन लोगों को जो भी था, फिर उतनी देर में उन लोगों ने टायर ब्रश किए, बस के टायर ब्रश कर दिए और फिर रवाना हो गए। उन्होंने कहा छोड़ो, अब हमने इनके जो है ना तलाशी नहीं लेनी। उन्हें तबलीग वालों ने जो कहा उनको, तो उन लोगों ने छोड़ दिया। फिर जनाब मरते मारते ऐसे चलते चलते बस उसने जंगल से निकाली, ड्राइवर ने, बस रोड पे चढ़ा, एक पंप था उस पर रुका, तो बाद में पुलिस आ गई। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, पुलिस आ गई तो क्या हुआ, कौन थे, क्या था, कितने पैसे लोगों के उठाए गए, उससे उससे लेख पर शुरू हो गई। बस यहीं पर तक बात ख़त्म हो गई। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा लें कि ये भी एक बड़ा डेंजरस हालात होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, खुद मेरे साथ खुद पेश आया हुआ वाक़या। उस दिन मुझे ये भी ताज्जुब था कि उन लोगों ने सबको लूटा, औरतों को भी नहीं छोड़ा, उनके लाकड़ वगैरह भी लिए, सब कोई। लेकिन हमारी किस्मत देखो, भाई ने कहा हमारे पास वैसे 400-500 है, हम मजदूरी के लिए जा रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो उसने वो भी नहीं लिया। उसने कहा कि ठीक है, अगर आप लोगों से और पैसे निकले तो हम आपको जो है ना छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों मेरा मकसद आपको ये सुनाना था वाक़या कि ये बड़े ख़तरनाक वाक़े होते हैं जो किसी के साथ पेश आए थे, वो कभी मुझे भूलता नहीं है वो वक्त, ना खैर करे। लेकिन आज तक पुलिस ने कहा जी हम कांटेक्ट करेंगे, नंबर दें, ये दें, वही वो जो है ना जब चोर भागते हैं तो बाद में ही वो पुलिस वाले आ जाते हैं, पंजाब पुलिस वाले। तो क्या बन रहा है, उस वक्त के जो ऐसे हालात थे। अब तो लगा शुक्र है मोटरवे बन गई है, उस वक्त मोटरवे नहीं थी, जीटी रोड था, अब सुकून से आना जाना होता है, अब ऐसा मसला कुछ नहीं होता। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि नौजवान आदमी जिनकी एज 20 साल और ऐसा काम करने पर मजबूर, और ना औरतों को छोड़ रहे हैं ना कुछ। बहरहाल अल्लाह बचाए ऐसे वाक़यों से, ऐसे दरिंदगी करने वाले लोगों से भी हर मुसलमान को अल्लाह महफूज बनाए, क्योंकि बहुत बहुत ही डेंजरस लम्हात होते हैं जब ऐसा वाक़या आप देखते हैं। तो दोस्तों दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना और अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर। खुदा हाफिज़।